Well, good morning, everyone, once again. I hope I am audible to everyone, and you can see the screen that I am been sharing with you all. That these are the things that we have discussed in our last class. We have discussed certain facts and what does adverse selection means, and how a bank can avoid, or what measures a bank can undertake for what do you call it, for avoiding, or you can say the overcoming the problem of adverse selection that we have discussed in our last class. I think last to last class, this is the topic we have discussed, and along with that we have also seen that there are certain facts that are to be considered. There are certain facts that are to be considered while looking at the solutions to the problem of moral hazard or adverse selection, principal agent problem, or moral hazard in the debt market. So today we'll proceed from here. This would be the agenda for discussion of today's class. That how what is adverse selection. We have already discussed this many times. What does adverse selection means? And today we'll see the probable solutions to the adverse selection problem. What probable solutions are available to work out in a way so that the adverse selection problem can be what do you call it, can be removed, or can be avoided, or can be solved in the market. So today's topic is, first thing is, this would be our first topic, that let's start with the topic. The topic is hello. The topic Yes, sir. is the topic is you should keep on responding whenever I say yes or no, so that I'll be able to have a sense that you all are present in the class. Okay. So the topic Okay, is sir. Okay, sir. tools to help solve adverse selection problem. Well, what tools can be used? What tools can be used to what do you call it, to solve the problem of adverse selection? To solve the problem of adverse selection in the financial market. So let us pen down one by one what are the different tools, and we'll try to understand them, what is their relevance, and how the given tool helps in removing the problem of adverse selection. The first tool is before writing any tool, let me see how many of you knows what does adverse selection means. Yes, who is going to tell me what does adverse selection is? Yes, who gonna reply this? Who gonna answer this? Who's going to answer this question? Yes, Good morning, sir. Sir Lalu this side. Lalu. Please speak. Yes, sir. Lalu. Sir, adverse selection means when there are more person. Sir, Speak somewhat louder. example देखिए. Speak somewhat louder. Mic problem. एडवर्स सिलेक्शन जैसे मुझे एक बाइक खरीदनी है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है, या मुझे किसी को लोन देना है, तो वहाँ क्या है कि ज्यादा लोग जो अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनवा के आए हैं, लेकिन उनका क्रेडिट मतलब रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कि वो रिपे करने का क्रेडिट अच्छा नहीं है,
लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनवा लिया है कि ये है वो है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिपे करने के लायक हैं लेकिन उनके पास अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और रिपेमेंट करने लायक नहीं है उनको लोन दे देते हैं, और जो पे कर सकता है उनको लोन नहीं देते हैं। अच्छा, जो पे कर सकता है उनको लोन नहीं देते हैं, शाबाश। कोई और बता सकता है थोड़ा और कंक्रीटनेस के साथ, व्हाट डज एडवर्स सिलेक्शन मीन्स? यस, संदीप नेगी, आई एम एबल टू सी संदीप नेगी। यस सर, एडवर्स सिलेक्शन में सर थोड़ा वो हो जाता है कि डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंशिएट मुश्किल नहीं, मतलब हम लोन गलत आदमी को दे देते हैं। जैसे लालू ने कहा ही था कि मतलब दो तरीके के लोग हैं, एक जिसके पास रिकॉर्ड्स प्रॉपर रिकॉर्ड की मतलब वो अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर पा रहा है, और दूसरा बंदा है जो अपनी क्रेडिबिलिटी शो नहीं कर पा रहा लेकिन उसकी इंटेंशन या फिर वो मतलब क्रेडिबल है कि लोन को रीपे कर सके। अच्छा, तो बैंक एडवर्स कर लेता है, मतलब जिसको लोन देना चाहिए था उसको ना देकर किसी और को दे दिया, मतलब, और जिसको नहीं देना चाहिए था, मतलब जिसको देना चाहिए था जो रीपे कर सकता था उसको नहीं दे पाए बैंक लोन। आरती जैन, आर यू देयर? हेलो। यस सर। हाँ, आरती जैन, प्लीज रिप्लाई। सर, एडवर्स सिलेक्शन मीन्स कि हम इसमें बैड क्वालिटी या फिर बैड चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बैड बोरोवर्स होते हैं तो मतलब जो हमें रीपे नहीं कर पाते हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कैसे भाई? सर फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बोला कि जो जिनकी रिपोर्ट मतलब जो पे नहीं कर सकते वो लोग अपनी रिपोर्ट अच्छी बनवा लेते हैं, अच्छा, तो इसलिए उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। आशिमा गांधी, आप बताइए। आशिमा गांधी, आर यू देयर इन द क्लास? हेलो। यस सर। हाँ, आशिमा गांधी, प्लीज टेल मी व्हाट डज एडवर्स सिलेक्शन मीन्स? एक्सप्लेन कीजिए। सर वही जो सबने बोला वो सही था कि जब हम रॉन्ग पर्सन को चूज कर लेते हैं, जैसे लोन देने के लिए जब बैंक चूज कर लेती है जो मतलब पे नहीं करेंगे, जो फ्रॉड काइंड ऑफ है, तो एडवर्स सिलेक्शन होता देखो, आप सब जवाब देना चाह रहे हो पर उसको एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखोगे एक लाइन की रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया है, ठीक है ना? यू हैव टू आंसर द वे यू आर सपोज टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, ऑलराइट? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि ताकि आप टॉपिक्स को लेकर क्लियर रहें कि क्या किस टॉपिक का क्या मतलब है। देखो, एडवर्स सिलेक्शन सिंपल सी बात है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एडवर्स सिलेक्शन is the problem which originates or arises because of the fact that there is asymmetric information in the market। कि मार्केट में asymmetric information है और उस asymmetric information के कारण लेमन्स प्रॉब्लम आती है, जिसको हम एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। लेमन्स को बैड माना जाता है। एक्चुअली इंग्लिश में ये कहावत है एक, लेमन्स एंड पीचीज। पीच होता है आड़ू, हिंदी में आड़ू बोलते हैं पीच को, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो स्वीट होते हैं खाने में, और जो लेमन्स होते हैं वो खट्टे होते हैं खाने में। तो जैसे हम हिंदी में अंगूर खट्टे हैं टाइप कहते हैं, तो उसी तरह लेमन्स प्रॉब्लम जो क्या कहते हैं कि विदेशों में इसको लेमन्स प्रॉब्लम कहते हैं, चॉइस बिटवीन लेमन्स एंड पीचेस। जैसे हम कहते हैं ना खोटा सिक्का और खरा सिक्का, है ना? कहते हैं ना ये खरा आदमी है, ये खोटा आदमी है। तो हमारा इंडियन कल्चर में हम खरा और खोटा बोलते हैं। ऐसे ही वहाँ यूएस में या अदर जो यूरोपियन नेशंस हैं वहाँ इस तरह के कंसेप्ट को लेमन्स और पीचेस बोला जाता है उनकी भाषा में। तो लेमन्स हो गए खोटा सिक्का और पीचेस हो गए खरा सिक्का, ठीक है, इंडिया के हिसाब से। अब इसमें क्या है कि सवाल यह है, लेमन्स प्रॉब्लम है, तो लेमन्स प्रॉब्लम होने से एडवर्स सिलेक्शन होता है। कैसे? कि एंट्री ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पुशेस आउट द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। कि बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है, जिसकी वजह से गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाहर चला जाता है।
अब जब गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट से बाहर जाएगा तो उससे क्या होगा, नाउ दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम दैट देयर विल बी अ पूल ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओनली, कि भाई ज़्यादातर मान लीजिए 100 गुड्स और सर्विसेज हैं, या मान लीजिए सेकेंड हैंड कार की मार्केट कर लेते हैं, तो मान लो आज कोई गाड़ी खरीदने गए लोग, तो जो गाड़ियां खड़ी हैं जितनी भी सेकेंड हैंड, उनमें से 90 गाड़ियां या 95 गाड़ियां जो हैं वो बेकार कंडीशन वाली हैं, पर चमकती हुई नज़र आ रही हैं सारी, और जो सचमुच अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है वो है 4 या 5। तो अब जो भी इंडिविजुअल चूज करेगा सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी खरीदने जाएगा, उसकी बैड क्वालिटी ऑफ कार यानी कि लेमन्स को खरीदने के कितने चांसेस हैं? हेलो, ज्यादा चांस है या कम चांस है? सर ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस है। ज्यादा चांस क्यों है? क्योंकि ज्यादातर वही है, तो इसलिए जो सेकेंड हैंड मार्केट होगी वहां एडवर्स सिलेक्शन हो गया। इज दैट ओके? हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको बोल देते हैं एडवर्स सिलेक्शन, कि बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतना फैल जाता है मार्केट में कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाहर हो जाता है, और फिर जो भी इंसान चूज करता है वो बैड, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, उसके हिस्से में बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ही आता है, जिसको हम लेमन्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है वो लेमन्स प्रॉब्लम के नाम से भी ये प्रॉब्लम जानी जाती है। इज दैट ओके? आई होप ये आपको रिकॉल हो गया होगा, और अब आप लोगों को याद रहेगा कि लेमन्स प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो अब सवाल यह है कि जो एडवर्स सिलेक्शन होता है, कि ऐसे क्या हम टूल्स यूज कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे कि हमें जो इंफॉर्मेशन की असिमेट्रिक है, देखो एडवर्स सिलेक्शन किसके हुआ, किसके कारण हुआ, कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, लेमन्स प्रॉब्लम आई। लेमन्स प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कि एंट्री ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड एग्जिट ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एंट्री ऑफ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड exit of good quality product from the market, कि मार्केट में से बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आए जिससे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाहर गए, तो दिस इज कॉल्ड एज लेमन्स प्रॉब्लम। अब क्योंकि एज अ रिजल्ट there will be pool of bad quality products, अब बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स का पूल होगा, इसीलिए क्या होगा, एडवर्स सिलेक्शन होगा। इसीलिए एडवर्स सिलेक्शन होगा कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ये कहती है कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से लेमन्स प्रॉब्लम आई, और लेमन्स प्रॉब्लम से जो था बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का पूल क्रिएट होता है, और बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का पूल क्रिएट होता है, तो जिसके कारण फिर एडवर्स सिलेक्शन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक तरीके से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करना है, अगर एक तरीके से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करना है, वेल आई थिंक आपको समझ आया कि व्हाट डज एडवर्स सिलेक्शन मीन्स। तो ये एडवर्स सिलेक्शन होता है। अब सवाल यह है कि हम कौन से टूल्स लें जिससे कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम दूर हो, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम दूर होगी तो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यस और नो? तो सबसे पहला जो टूल बताया गया है वो टूल है प्राइवेट प्रोडक्शन। प्राइवेट प्रोडक्शन and sale of information। अब प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ,
कि एक आप चीज़ ये कर सकते हो कि जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करती है उसको एलिमिनेट करने के लिए, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल्स की, फर्म्स की, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर्स खरीदने हैं आपकी कंपनी के, तो आपकी कंपनी की अगर इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए पहले से ही कि भाई आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, आपकी कंपनी के सीईओ कौन है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है पहले से, आपकी कंपनी की ग्रेडिंग क्या है, आपकी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको कितना मेंटेन करती है, तो इस तरह की अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं से तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी एडवर्स सिलेक्शन को या जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको दूर करने के लिए। हेलो, यस यस और नो, कि मुझे वो हेल्प करेगी ना ये चीज, ठीक है। तो कहता है कि इस तरह से ये प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हो। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल्स देता है, आपने बहुत सारी कंपनी सुनी होंगी जैसे कि रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिर ऐसी एक और कंपनी है जो ये इस तरह का काम करती है, मूडीज एटसेट्रा। अब ये इस तरह की ये जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये क्या करती हैं, कंपनीज की इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं और उन इंफॉर्मेशंस के हिसाब पर ये पब्लिश करती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं तो उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ये सेल भी करती हैं, क्योंकि नहीं तो इनको पैसा कहाँ से आएगा, यस और नो। तो ये सेल करती हैं। तो अब इसलिए क्या होता है कि जब ये सेल करती हैं तो जो भी इंडिविजुअल जिस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, वो उससे परचेज करनी होती है। तो कहता है कि इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्या, जिसको हम बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम को हिंदी में हम कहें तो मुफ्तखोर लोग हो गए। तो कहता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि मुफ्तखोर लोग भी हो। मुफ्तखोर लोग कैसे हैं, मान लो मैं कह दूं भाई आपने इंफॉर्मेशन ले ली, आप मेरे साथ भी शेयर कर लो भाई, तो उसमें क्या होगा कि मैं इंफॉर्मेशन खरीदूंगा मैं, ठीक है, और उसके साथ या आपने खरीद ली, मैं कह रहा हूं भाई मुझे भी दिखा दो ये, तो उससे होगा क्या कि खरीद आपने ली, उसी से मेरा भी काम चल जाएगा सारा। तो वो फ्री राइडर हो गया, मैं फिर वहां पर क्या है, फ्री राइडर हो गया। यानी कि मैं अपनी जेब से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, और मैं आपने जो पैसा स्पेंड किया है उसी से मैं उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहा हूँ। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन की जो ये क्या कहते हैं कि जो टूल बताया गया है ये इस तरह से इसमें बताया गया, और इसके ये एक तरीके की लिमिटेशन भी है कि इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, तो ये इसके अलावा भी और कुछ हम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि दूसरा, आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन। यस यस स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं कि दूसरा जो सॉल्यूशन या टूल बताया गया है वो बताया गया है एक तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेशन। रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने से गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या है, इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रेगुलेशन है, यानी कि कैसे। देखो, अब कई कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के कई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि कोई भी एक कंपनी है उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उन्हें अपना इनकम टैक्स टाइम से जमा कराना होता है, दूसरा उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए एक तरीके से जो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस हैं वो भी क्या कहते हैं कि हेल्प कर सकते हैं किसी भी एक फॉर्म की क्या कहते हैं कि करेक्ट जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको दूर करने के लिए। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो आपने देखा होगा कि जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो हैवीली रेगुलेटेड होता है, यस और नो? वो क्या होता है? यस सर। हैवीली रेगुलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑडिट कराना पड़ता है, और ऑडिट कराता है तो फिर उनके जो क्या कहते हैं कि हिसाब किताब रखना पड़ता है, उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिलेक्शन का अपना प्रोसीजर है कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं वो उनको रेगुलेट करती हैं हैवीली, यस और नो? तो कहता है एक ये तरीका भी है जिसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तरीके यूज़ कौन करेगा? लेंडर, क्योंकि कभी तो बोरोवर के पास है भाई, जो पैसा ले रहा है हमसे वो गड़बड़ी करेगा ना, डिफॉल्ट करेगा ना रीपेमेंट करने पे, जो लैंड कर रहा है वो थोड़ी करेगा। तो ये सुविधाएं कौन उठाएगा? लेंडर, बोरोवर नहीं उठाएगा, बोरोवर को कोई लेना देना नहीं है, यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है ना। तो इसके आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बताया जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीडिएशन, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहता है कि इंस्टेड अवॉइड डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड adopt indirect financing। कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन ये कहता है कि भाई आप डायरेक्टली मत करो फंडिंग, आप इनडायरेक्टली कर दीजिए, जो लेंडर है वो इनडायरेक्टली लेंड कर दे, जैसे बैंक के थ्रू कर दे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर दे, यस और नो? तो कोई ना कोई बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अगर आप रख लेते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को इंफॉर्मेशन दी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास एक्सपर्ट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास क्या कहते हैं कि एक तरीके से रिसोर्सेज भी होते हैं, उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिल रहा होता है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें वो बताता है कि जो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो करती हैं फर्म्स, उनमें क्या है, एक तरीके से पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस आता है। पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस, पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि जो लार्ज फर्म्स होंगी, ये हाइपोथेसिस क्या कहता है? कहता है ओनली large and established firms will be able to raise funds from the market, from the public, or you can say, or through securities। सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर्स वगैरह सेल ऑफ करके सिर्फ जो लार्ज फर्म्स होती हैं वही क्या करती हैं, एक तरीके से फंड्स रेज कर सकती हैं। आप और हम मार्केट से शेयर्स इशू करके फंड्स रेज नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? यस, एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई। सर पीकिंग वाला। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर ये पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस रिपीट कर दो। हाँ, क्या नाम है जो क्वेश्चन पूछ रहा है? सर पंकज। पंकज, हाँ तो पंकज देखो, पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस ये कहता है कि भाई जब आप सिक्योरिटीज मार्केट में
फंड्स रेज करने हैं किसी एक फर्म को, मान लीजिए मुझे फंड्स रेज करने हैं सिक्योरिटी मार्केट में, मैं पैसे, अब मेरा है एक छोटा सा रेस्टोरेंट, क्या मैं शेयर्स इशू कर सकता हूं? यस सर। अरे भाई मैं शेयर्स इशू कर सकता हूं क्या? नो सर। नहीं कर सकते ना, उसके लिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब कंपनीज sir, एक्ट के अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर्ड हो गए, तो भी जब आप अपना आईपीओ निकालेंगे, जिसको आप इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हो, तो वो आईपीओ आपकी गुडविल पर चलता है, या सुनो Yes, कि sir. कितने Yes, sir. लोग उस आईपीओ को खरीदने को तैयार है और कितने लोग उस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका नाम कितना अच्छा है, आपकी रेपुटेशन कितनी है मार्केट में, इजंट इट? तो जिस Yes, sir. फर्म की, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अगर कोई नई कॉरपोरेशन है और उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है, वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है, वेल एस्टैब्लिश्ड होने का मतलब क्या है? मार्केट में रेपुटेशन अच्छा होना। अगर वो वेल एस्टैब्लिश नहीं है, मार्केट में रेपुटेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से फंड्स को रेज नहीं कर पाएगी, यस और नो? तो ये कहता Yes, है sir. पीकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस, कि भाई जो सिर्फ लार्ज फर्म्स होती हैं और एस्टैब्लिश्ड फर्म्स होती हैं, वही मार्केट से फंड्स सिक्योरिटीज के थ्रू, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या आप इसको कह सकते हो इक्विटी, इक्विटी एंड बॉन्ड्स, आप कह सकते हो इक्विटी एंड बॉन्ड्स, ठीक है? शेयर डिवेंचर्स और इक्विटी एंड बॉन्ड्स, ठीक है? तो कहता है इक्विटी बॉन्ड से, शेयर डिवेंचर से वही आदमी मार्केट से पैसा उधार ले सकता है। अब मान लीजिए कोई नया नया दुकानदार आया है मार्केट में, तो उसको कोई उधार दे देगा क्या एकदम से सारा सामान? नो सर। क्या सप्लायर उसे उधार दे देगा? नहीं, वो पहले चेक करेगा कि ये पेमेंट कर सकता है नहीं कर सकता। तो जो इस्टेब्लिश्ड फर्म होती है उनको तो मार्केट में उनका नाम चलता है, तो उनकी जो सप्लाई चेन होती है वो अपनी मेंटेन कर लेते हैं अपनी उस गुडविल के बेसिस पर ही। इज दैट ओके? यस सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैटरल्स, कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को दूर करने के लिए या एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोलैटरल्स ले सकते हो। कोलैटरल्स का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स समथिंग, सम प्रॉपर्टी और सम एसेट हैज बीन mortgaged with you or pledged with you, that in case the borrower defaults, then you can sell off that asset and you can recover your landed funds, whatever you have lent you can recover from the sale of that collateral. That is what the collateral means. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो एक कोलैटरल भी होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से क्या कहते हैं कि आप ये कह सकते हो, क्या भला, कि क्या कहते हैं कि जो फर्म्स हैं वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को दूर कर सकती हैं। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। ठीक है। उसके बाद जैसे कोलैटरल होता है, ऐसी एक चीज होती है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है ना? कि नेटवर्थ क्या होती है किसी भी फर्म की? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इस तरह का भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो जो लेंडर होगा एक तरीके से, जिसने पैसा दिया अपना, जिसने एक तरीके से फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, वो कंपनी की नेटवर्थ पर उसका हक बन जाएगा। हक बनने का मतलब क्या है कि जब उस कंपनी के से मान लीजिए कोई एसेट सेल करना पड़ेगा या कुछ भी इस तरह का करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगी फर्म, तो वो कंपनी क्या करेगी, एक तरीके जो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, पहले उसका हक होगा उन एसेट्स पर, उसको वो एसेट दिए जाएंगे ताकि उसकी वो रिकवरी हो सके, उसके बाद किसी और को मिलेगा। इज दैट ओके? हेलो? यस सर। ठीक है।
तो ये नेटवर्थ का प्रॉब्लम, यानी कि नेटवर्थ भी एक तरीके से कोलेट्रल की तरह ही काम कर रही है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, जितने भी पॉइंट हमने ये एडवर्स सिलेक्शन के बारे में देखा है, तो अब हम देखते हैं कौन सा पॉइंट कौन से फैक्ट को इस्टेब्लिश करता है जो हमने फैक्ट पढ़े थे। अब ये देखो, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये क्या, प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो फर्स्ट और सेकंड फैक्ट है उसको एक तरीके से रीस्टैब्लिश करता है। कैसे, ध्यान से देखो। फर्स्ट फैक्ट क्या था, स्टॉक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। भाई सिर्फ स्टॉक से ही फाइनेंस नहीं करेंगे वो, क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट फर्म्स है वो इंफॉर्मेशन देगी, उन इंफॉर्मेशन में अगर उनकी रेटिंग कम हो जाती है तो वो सारा पैसा स्टॉक से तो नहीं ले पाएंगे, उनको दूसरे सोर्सेज पर भी जाना पड़ेगा। दूसरा, इस फैक्ट को भी इस्टेब्लिश करते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। रीजन बीइंग कि भाई अगर आप मान लीजिए एक तरीके से प्राइवेट फर्म्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं आपको किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के कारण, तो उस फर्म की रैंकिंग कहाँ पर आ रही है, जैसे स्टैंडर्ड्स और पुअर्स की आती है, तो सिर्फ उस रैंकिंग के बेसिस पर या सिर्फ उस प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो जो फाइनेंस लेने वाली फर्म होंगी, यानी कि जिसको फंड्स रेज करने हैं, वो फंड सिर्फ सिक्योरिटीज से रेज करेगी ऐसा तो वो सोच कर चल नहीं सकती, क्योंकि उसे लगेगा कि हमारी रैंकिंग अभी कम है या ज़्यादा है, जैसी भी है हमें पैसा मार्केट से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इज दैट ओके? हेलो। तो जो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसने फैक्ट 1 और 2 को इस्टेब्लिश किया है। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आता है पॉइंट नंबर, ये गवर्नमेंट वाली बात, ये गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है ये फैक्ट 5 को इस्टेब्लिश कर रहा है। फैक्ट 5 क्या है, ध्यान से देखो। क्या था फैक्ट 5? कि फाइनेंशियल सिस्टम इज हैवीली रेगुलेटेड। तो ये फैक्ट 5 को ही सपोर्ट कर रहा है ना, ये जो गवर्नमेंट वाला है, कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस ऐसे बना रखे हैं जिससे कि, जैसे मैंने लिखा ना, ये हैवीली रेगुलेटेड, रेगुलेशंस ऐसे बना रखे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कि भाई आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, आपकी इतनी रिजर्व कैपिटल होनी चाहिए, आपका इतना पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, आपको इतने हमेशा रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, अगर आपको इशू करना है तो आपको अपनी बैलेंस शीट इतनी मेंटेन होनी चाहिए, इतनी वर्थ आपकी पहले होनी चाहिए। ये सारे रेगुलेशंस ही तो हैं। इज दैट ओके? तो जो ये जो सॉल्यूशन या टूल नंबर 2 था गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला, ये फैक्ट 5 को इस्टेब्लिश कर रहा है। इज दैट ओके? हेलो। यस सर। ठीक है। तो इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन वाला है, ये पॉइंट 3, 4 और 6 को, फैक्ट 3, 4 और 6 को रीस्टैब्लिश कर रहा है। लेट अस सी हाउ। फैक्ट 3, 4 और 6। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट डायरेक्ट। भाई इस बात को इस्टेब्लिश करता है ना फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कि इनडायरेक्ट फाइनेंस को एनकरेज करो या एडॉप्ट करो और डायरेक्ट फाइनेंस को डिस्करेज करो। यही तो लिखवाया मैंने। हेलो। यस सर। ठीक है ना? तो ये इस फैक्ट नंबर 3 को रीइंस्टेट कर रहा है। फैक्ट नंबर 4 देखो, बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। यस, जब हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की बात करेंगे तो बैंक से ही बोरोइंग कर रहे हैं। हमने तो अपना अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, तो हम तो अपनी सिंपली सेविंग कर रहे हैं। अब बैंक आप आगे जिसको लोन कर रहा है, लैंड दे रहा है, तो वो बैंक जाने कि भाई जो बैंक से बोरोवर है वो ईमानदार है या नहीं है, तो वो एक्सपर्ट की सलाह, वो सारी चीजें वो बैंक देखेगा। यस और नो? हेलो। यस सर। ठीक है। और जो 6th फैक्ट है वो क्या है कि ओनली लार्ज फर्म्स, वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैव एक्सेस टू सिक्योरिटीज मार्केट। सिंपल सी बात है कि जो बड़ी फर्म्स नहीं होगी वो बैंकों के पास जाएगी, और जो बड़ी फर्म होगी वो बैंकों के पास कम जाएगी, वो सिक्योरिटीज के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू ज्यादा पैसा उठाएगी। यस और नो? हेलो। क्योंकि उसकी रेपुटेशन है
उसे मालूम है उसकी रेपुटेशन के बेसिस पर उसे मार्केट से पैसा मिल जाएगा, पीपल विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन देयर सिक्योरिटीज और द बॉन्ड्स, यू कैन से दैट, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कोलेट्रल्स और नेटवर्थ। जो कोलेट्रल्स और नेटवर्थ है ये एक तरीके से फैक्ट 7 को इस्टेब्लिश करते हैं। अब फैक्ट 7 क्या है ये देख लेते हैं। लेट अस सी, फैक्ट 7 है कोलेट्रल इज अ प्रेवलेंट इन डेट मार्केट। सिंपल सी बात है भैया कि जो डेट मार्केट है कोलेट्रल्स होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं डेट दे रहा हूं, किसी को लैंड कर रहा हूं फंड्स, तो जो डेटर है इफ इन केस इफ ही डिफॉल्ट्स आई हैव द कोलेट्रल विच विल हेल्प मी इन रिकवरिंग माय फंड्स, इजंट इट? सो कोलेट्रल्स और नेटवर्थ जो होती है वो दोनों ही ये काम करते हैं कि एक तरीके से डेट मार्केट में वो प्रेवलेंट होते हैं। अरे भाई क्या ये सब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस ठीक है, यस सर। अब हम देखते हैं आगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? इससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन इन रिगार्ड टू दिस, यस यू मे आस्क एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में जितना अभी तक हमने किया है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर। हाँ बोलिए, हु इज स्पीकिंग? सर प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बार फिर से रिपीट कर दो ये पॉइंट। हेलो, मैं हु इज स्पीकिंग? सर पलक। पलक खान। हाँ पलक, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, इस पॉइंट में क्या समझ नहीं आया आपको पलक? लेट मी फर्स्ट सी व्हाट यू हैव नॉट गॉट इट, व्हाट यू हैव नॉट गॉट इन दिस पॉइंट। आपको क्या समझ नहीं आया पलक? यस सर उस वक्त नेटवर्क इश्यूज थे तो मैं ये पॉइंट अच्छा, सुन नहीं पाए आप, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो ऐसा है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन का जो पॉइंट है, यानी कि जो ये वेरी फर्स्ट पॉइंट है, प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, कहता है कि जो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण है। अब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि द बोरोवर हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द लेंडर इन रिगार्ड टू द ऑनेस्टी ऑफ द बोरोवर, यस और नो? हेलो, यस सर। तो अगर कोई कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है या कोई कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, तो हम और आप लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उस कंपनी के शेयर्स जो खरीदने वाले हैं या उसकी बॉन्ड्स खरीदने वाले हैं या उसकी इक्विटी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास उस कंपनी की कम इंफॉर्मेशन है। उस कंपनी को अपने बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो कंपनी कहाँ पैसा लगाएगी, कहाँ पैसा नहीं लगाएगी, इजंट इट? हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है कि ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन होगा। या तो हम ऐसी कंपनी में पैसा लगा बैठेंगे कि जो हमारे एक तरीके से डूबने वाली होगी, जो हमारे फंड्स जो होंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पानी हो जाएगी वहां पर, या फिर हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाने वाले होंगे या बोरो लैंड करने वाले होंगे ऐसी कंपनी को कि जिसको हमने पैसा दिया और वो फिर हमें लौटा नहीं रही है टाइम से, क्योंकि वो बैंक करप्ट हो गया या वो भाग गए हैं या कुछ भी हो गया इस तरह का। यस और नो? हेलो सर। हाँ जी। तो in both the cases, because of the asymmetric information, there is a Lemons problem and adverse selection. Consequently, there will be adverse selection, isn't it? तो अब सवाल है इसको दूर कैसे किया जाए, यानी कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि जो फर्म जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके शेयर्स हम खरीदने वाले हैं, जिस फर्म के सिक्योरिटीज हम खरीदने वाले हैं, चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, जो हम उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है? कि भाई एक तो प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और मूडीज। ये कंपनीज क्या हैं, ये फर्म्स क्या हैं
ये रेटिंग करती हैं सभी फाइनेंशियल फर्म्स की, इवन कंट्रीज की रेटिंग करती हैं ये, और इनकी रेटिंग के बेसिस पर हमें पता चलता है कि भाई जो वो फर्म है या जो वो कंपनी है या कंट्री है, वो फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्या वो ऑडिट और जो अकाउंटिंग रूल्स जो हैं, गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग रूल्स जो हैं, क्या उनको पूरा फॉलो कर रही हैं? क्या वो उनको फॉलो करते वक्त उनकी जो एसेट्स हैं वो बढ़े हैं? क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पीछे बढ़ी है या घटी है? क्या उनकी नेटवर्थ बढ़ी है या घटी है? उनकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ी है या घटी है? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेकर ये स्टैंडर्ड्स और पुअर्स या मूडीज जो कंपनी है, ये फर्म्स क्या करती हैं, उन फर्म्स की रेटिंग करती हैं। ये रेटिंग एजेंसीज है, स्टैंडर्ड्स और पुअर्स एंड मूडीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, हाँ जी। ठीक है, अब ये रेटिंग करती है, मान लो इन्होंने रेटिंग कर दी कम किसी कंपनी की, तो उस कंपनी को के ऊपर तो लोगों का शक आने लग जाएगा ना कि अगर उसकी रेटिंग डाउन गई है, मान लो ए ग्रेड से या ए प्लस से वो नीचे चलेगी, ए में आ गई या बी में चली गई या बी प्लस में चलेगी, तो इसका मतलब उस कंपनी की क्वालिटी में, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, उस कंपनी की फंक्शनिंग में, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में या नेटवर्थ में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आई होगी। हेलो, यस। या उसके जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड रूल्स हैं गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं, उनको फॉलो उसने कंपनी ने नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग जो है कम आई है। तो उस रेटिंग के अनुसार लोगों को एक तरीके से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है, ऑनेस्ट है, या कौन सी कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी नहीं है। तो एक तरीके से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दैट वाज द प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। इज दैट ओके? यस सर, क्लियर है। हाँ, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फ्री राइडर प्रॉब्लम है कि मुफ्तखोरों की। अब ये कंपनीज जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं किसी भी और कंपनी के बारे में, तो अब क्योंकि ये उस तरह का काम कर रही है तो इनको भी अपना रेवेन्यू चाहिए, तो ये कंपनी क्या करती हैं, एक तरीके से उस इंफॉर्मेशन को सेल करती हैं मार्केट में, यानी कि अपने न्यूज लेटर के थ्रू, अपनी मैगजीन्स के थ्रू। तो जिसको भी उस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो या तो मैगजीन खरीदना शुरू करे, या वो इनके न्यूज लेटर देखना शुरू करे, या इनका मेंबर बने, जिससे कि इनके उन लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन आ जाए। अब स्टैंडर्ड्स और पुअर्स ने किस कंपनी की क्या रेटिंग दी और क्यों दी, किस वजह से दी, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको घर बैठे तो पता चलेगी नहीं। या सुनो, मुझे या तो इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा फ्रिक्वेंटली, या इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये रेगुलरली मुझे उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। अरे भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes. तो इसमें कहता है इसमें भी फ्री राइडर्स हो सकते हैं। ऐसे फ्री राइडर्स होते हैं मुफ्तखोर, कि जो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, दूसरे के पैसे पर ही या दूसरे के एक्सपेंडिचर पर ही जो प्रिविलेजेस हैं उनको एंजॉय करना चाहते हैं। तो वो फ्री राइडर्स लोग कहलाते हैं। जैसे मान लो मैगजीन है, मैं कह दूं भाई मैंने लगा रखी है, आप कह रहे हो चलो ठीक है आपकी मैगजीन ही हम भी पढ़ लेंगे सर, या आपने ले ली तो मैंने कहा ठीक है यार तुमने तो ले ही ली, तुम्हारे घर में तो आई रही है, मुझे भी दिखा देना, तो मैं वहां पर फ्री राइडर हो गया। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। अरे भाई, ये जो लड़की पूछ रही थी क्या नाम है, पलक नाम है बेटे आपका? यस सर, यस, क्लियर है। तो बच्चे Thank जो you, sir. तो ये फ्री राइडर हो गए। तो कहता है ये फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्रोडक्शन और सेल ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो टूल है ये पूरी तरह से जरूरी नहीं है काम करेगा ढंग से। ठीक है। तो दैट वाज द ऑल अबाउट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? यस, किसी और ने कोई No, सवाल, sir. कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस सर, ये जो आपने बताए थे फैक्टर्स, 8 फैक्टर्स, हाँ हाँ, फैक्टर्स इसमें में से 8वां फैक्टर, फैक्ट्स। फैक्ट्स, हाँ। यस सर। तो इसमें से 8वां फैक्ट जो है ये डेट कॉन्ट्रैक्ट्स है, न्यूमरस रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, ये समझा दीजिए। देखो 8वां फैक्ट भी जो है वो
कोलेट्रल या नेटवर्थ के पॉइंट को ही कवर करता है। नेटवर्थ और कोलेट्रल का पॉइंट जो है वो 8वां पॉइंट को भी करता है कवर। देखो जो फैक्ट हमने लिखा था, मैं फिर से उस फैक्ट पर जा रहा हूं। यही है ना 8th फैक्ट, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव न्यूमरस रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स का मतलब होता है एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट कह लीजिए या क्लॉजेस कह लीजिए, कहते हैं ना हिडन क्लॉजेस होते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो, यस और नो। तो यस सर। कोवेनेंट्स का मतलब है वो क्लॉजेस या वो उस तरह के एग्रीमेंट्स। कहता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हो जब आप डेट मार्केट होती है। डेट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, उधार लेने वाले। जैसे देखो क्या करेगा, जैसे इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल है। अब ये जो इंडिविजुअल है, ये दो इसके पास ऑप्शन है क्या, एक तो ये इक्विटी में जा सकता है, इक्विटी यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, एक ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है यानी कि डिवेंचर्स में। जब ये ए इंडिविजुअल इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा तो ये ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाएगा। ओनरशिप आती है इसमें एक तरीके से। ओनरशिप आती है इसमें। और जो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें एक तरीके से क्रेडिटरशिप आती है, यानी कि अगर ए किसी कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी है, अगर कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक मिनट है, लेट मी, हाँ, अगर कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, अब कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब जो XYZ लिमिटेड है, ए इसके XYZ लिमिटेड के शेयर्स भी खरीद सकता है और बॉन्ड्स भी। अगर ए XYZ कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदता है तो ए की क्या होगी, ओनरशिप हो गई XYZ में, कि वो इसका हिस्सेदार हो गया। शेयर्स का मतलब तो हिस्सेदार ही होता है ना, तो इक्विटी शेयर्स हिस्सेदार हो गया, यानी कि इस कंपनी के प्रॉफिट में, लॉस में, इस कंपनी के एसेट्स पर ए का भी अधिकार हो गया। कितना, उतना जितना इसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? हेलो, यस सर। ठीक है। ऐसे ही ए हो सकता है कि इसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट ना करे, ए कहे कि भाई मैं इसके बॉन्ड्स ले लेता हूं क्योंकि कल को कंपनी को लॉस होगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा लॉस भी, यस और नो। तो वो सोचता है मैं बॉन्ड्स खरीद लेता हूं। यस। तो जब बॉन्ड्स खरीदता है ए, तो ए क्रेडिटर बन जाएगा, तो XYZ लिमिटेड क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ए XYZ से बॉन्ड्स या डिबेंचर खरीदेगा उसको बोलेंगे डेट कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके? डेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हेलो, यस। जो एग्रीमेंट वो करेंगे, वो एग्रीमेंट क्या होगा कि भाई XYZ लिमिटेड कंपनी कहेगी भाई हमारा ये बॉन्ड है, इसको इस पे हम 3 साल में इतना एक एनुअल इंटरेस्ट रेट इतना देंगे जो कि आपको हर साल इस महीने में मिल जाएगा। अगर इसमें ये होगा तो ऐसा करना होगा, ये होगा तो वैसा करना होगा, यस और नो। ठीक है। तो अब जब ये डेट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं फर्म्स, तो ये डेट कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें डाल सकती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे डाल सकती हैं? कुछ इस तरह की क्लॉजेस उसमें डाल सकती हैं कि एक तरीके से जिससे ये रहे कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, यानी कि जो नुकसान करने वाली हैं फर्म्स, वो बच जाएं। कैसे? जैसे उसमें वो डाल दें कि भाई आप इस पैसे को, हम इस पैसे को सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में यूज करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर यूज में करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ए को पहले से पता होगा कि जो पैसा मेरे से ये उधार ले रहे हैं उसको जहां ये इन्वेस्ट करने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। अगर मान लीजिए ए कंपनी को लगता है, ए को लगता है कि बी कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही है जिस एसेट में रिस्क ज्यादा है, तो ए उसको लैंड नहीं करेगा। मान लो मैं किसी से उधार लूं कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, कहता भाई क्या करेगा, मैंने कहा भाई मैं जुआ खेल लूंगा। अब बताओ कोई मेरे को देगा उधार क्या? हेलो, नो सर। नहीं देगा ना। पर हाँ, अगर मैं किसी से उधार लेता हूं और मैं कहता हूं कि भाई देखो मैं इस पैसे को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे अपना बिजनेस, अपनी दुकान खोलनी है, मेरी दुकान चलेगी, मैं धीरे धीरे आपके पैसे लौटा दूंगा, तो इंसान मदद करने को आगे आ जाता है। दूसरा सोचता है ठीक है भाई मैं इंटरेस्ट लूंगा तेरे से इतना, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वहां से वो रिटर्न आ सकती है। तो जब ये एग्रीमेंट होगा क्रेडिट देने का या क्रेडिट लेने का या लैंडिंग या बोरोइंग का, जिसको हम डेट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसे रेगुलेशंस या एग्रीमेंट्स या ऐसे क्लॉजेस डाल सकते हैं जो इस पैसे को XYZ जगह यूज करने से रोकता हो या PQRS जगह यूज करने के लिए एनकरेज करता हो। जैसे वो कह दे कि जो डेप्ट हम दे रहे हैं उस डेप्ट को आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में यूज करोगे, उसको आप इक्विटी मार्केट में नहीं लगाओगे, उससे आप रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो इस तरह के क्लॉजेस डाल सकते हैं ना। हेलो, यस सर। तो उनको बोलते हैं डेट Yes, कॉन्ट्रैक्ट्स हैविंग न्यूमरस रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स का मतलब है एग्रीमेंट्स और क्लॉजेस। इज दैट ओके? यस सर, आ गया। तो ऐसा ही एक क्लॉज ये हो गया कोलेट्रल का कि भाई अगर आपने हमारा पैसा इतने दिन में नहीं लौटाया या आपने ब्याज रेगुलरली पे नहीं किया तो हम आपसे इतना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या आपके इस एसेट को हम बेच देंगे। तो कोलेट्रल का यही तो मतलब हुआ। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये मतलब है। किसी और ने कुछ पूछना है? यस सर। आई होप ये सर जो फ्री राइड समझ आया होगा आप लोग को। हाँ बोलो। सर जो फ्री राइडर्स प्रॉब्लम थी सर, हाँ। उसको सॉल्व करने के लिए कोई मेजर्स वगैरह लिए थे? नहीं लिए, मतलब ऐसे लिए हैं क्या कंपनी ने? क्या किसी ने नाम है लिए थे? आपका? नाम क्या है भाई? क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सर संदीप नेगी। संदीप नेगी। हाँ संदीप, आपका क्वेश्चन क्या, एक बार Yes, रिपीट sir. करोगे? सर जो फ्री राइडर्स प्रॉब्लम थी हाँ। मूडीज वगैरह के केस में, हाँ हाँ, तो सर उसका कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है, मतलब अभी तक ऐसे निकाला है? देखो मूडीज के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम है ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि जहां पर ऐसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन खरीदनी होती है किसी भी इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां फ्री राइडर प्रॉब्लम हो सकती है। और उस फ्री राइडर प्रॉब्लम होने के कारण जो है कि जो पर्पस था प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का या सेल करने का, वो पर्पस डिफीट हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और वो Yes, sir. पर्पस डिफीट हो सकता है। और वो डिफीट कैसे होती है? यानी कि जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थी उसको उसको एक तरीके से दूर क्या कहते हैं कि दूर नहीं हो पाएगी वो अगर फ्री राइडर्स रहेंगे तो। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, जैसे मैं फ्री राइडर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई सपोज करो आपकी गली में अंधेरा रहता है, ठीक है भाई, और आपने गली मोहल्लों के लोगों ने 5-7 जो मकान है वहाँ पर जिनके आगे अंधेरा रहता है रात को, वहाँ से साइकिल या स्कूटर कोई चोरी कर ले जाता है, कोई पेट्रोल चोरी करके ले जा रहा है, कोई टायर खोल के ले जा रहा है, इस तरह की वहाँ इवेंट्स हो रहे हैं। तो अब क्या है, या होने के चांसेस है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। अब क्या है, सपोज करो कि जो मोहल्ले वाले लोग हैं उन्होंने 5-10 लोगों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एक बड़ी हेलोजन लाइट लगा लेते हैं, एक इधर और एक वेब कैम लगा देते हैं जो रिकॉर्डिंग करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेब कैम या क्या बोलते हैं उसको? सीसीटीवी लगा देते हैं जिसमें कि रिकॉर्डिंग होगी। यस और नो? अब उसका खर्चा मिलके हो रहा है सपोज करो 50,000 रुपए। लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली 20,000, 10,000, 50,000 मान लीजिए। अब मान लो 10 मकान है तो 50,000 खर्चे हैं, तो हर मकान के हिस्से में कितना आएगा? हर मकान मालिक के हिस्से में कितना आएगा अगर 10 मकान है? अरे भाई
5,000 आएगा ना, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी थी, इतना टाइम लगा रहे हो आप। तो 5,000 आएगा, यस और नो। अब मान लीजिए उनमें से जिसका एक का मकान है वो कह रहा भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है बाकी 9 भी अगर पैसा मिलाकर लगाएंगे, समझ रहे हो बात को, तो भी वो बल्ब की रोशनी या रिकॉर्डिंग ऐसा तो होगा नहीं मेरे घर के आगे से नहीं होगी, वो तो रिकॉर्डिंग तो पूरे रास्ते में ही होगी ना, यस और नो। यस सर। है ना। तो और अगर वहां पर बल्ब या हेलोजन जो भी लाइट लगती है, ट्यूब लाइट या बड़ी लाइट जो भी कह सकते हैं उसको हम, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, वो लगती है, तो उसका भी जो रोशनी ऐसा तो नहीं होगा कि उसके घर के आगे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, बस वहीं तक ही आएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जो सेफ्टी मिलेगी और जो प्रिविलेजेस मिलेंगे वो उस 10वें घर वाले को भी मिलेंगे, बाकी 9 को जो मिलेंगे, यस और नो, चाहे वो पैसा दे चाहे ना दे, है ना। यस सर। तो वो 10th इंडिविजुअल क्या होगा, फ्री राइडर। तो जब 10वें ने सोचा ऐसा है, तो 9वां भी सोच रहा है मेरे को भी क्या जरूरत है, मैं भी कह देता हूँ भाई मुझे तो जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो वो 9वां भी यही कहता है, 10वां भी यही सोच लेता है कि बाकी के कर लेंगे, मतलब कि 7वां भी 8वां भी यही सोचता है, 7वां भी ऐसे सोचता है, ऐसे ऐसे सब ऐसे ही सोचने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, ना तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगेगा उस मोहल्ले में, और ना ही वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट लगेगी। यही रिजल्ट निकलेगा, कुछ और निकलेगा? यस सर। हेलो संदीप, यही रिजल्ट निकलेगा ना। Yes, दैट sir, yes, मीन्स if everybody starts behaving like a free rider, in that case whatever measure is being adopted by the society, or you can say the particular firm or an organization, that strategy will fail out. इसी तरह से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना और सेल करना, सपोज करो अगर कोई सोच रहा है कि वो खरीदेगा मैं उससे देख लूंगा, दूसरा सोचेगा वो खरीदेगा मैं उससे, कोई उस इंफॉर्मेशन को खरीद ही नहीं रहा। अब अगर उस तरह की इंफॉर्मेशन सेल हो ही नहीं रही है मार्केट में, तो स्टैंडर्ड्स और पुअर्स भी उस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो Yes, इस तरह से जो फ्री राइडर प्रॉब्लम है वो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को फेल कर सकती है। अब आपका सवाल ये था कि क्या उसको फ्री राइडर प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है किसी वजह से? सर आपकी आवाज नहीं आई लास्ट में, थोड़ी लास्ट सेंटेंस। मैं कह रहा हूं आपका सवाल ये था कि क्या फ्री राइडर प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है किसी तरह से, दैट वाज योर क्वेश्चन ना? यस सर। ठीक है। अब देखो वो फ्री राइडर क्यों है? क्योंकि उन्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, इसीलिए तो वो फ्री राइडर है। भाई वो 10वें मकान का मालिक जो था उसने मना क्यों किया? क्योंकि उसे पता है उसकी जेब से 5,000 रुपए जाएंगे घर में स्ट्रीट लाइट लगेगी तो। पर अगर वो स्ट्रीट लाइट या सीसीटीवी कैमरा वो मोहल्ले वाले ना लगाकर गवर्नमेंट लगा दे, तो सारे फ्री राइडर हो गए, फिर सबको ही बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट उसे कैसे इंस्टॉल करेगी? सरकारी पैसे से। सरकारी पैसा कहां से आता है? टैक्स से। टैक्स कौन पे करता है? पब्लिक पे करती है। टैक्स कौन पे करता है? पब्लिक पे करती है। तो एक ये सॉल्यूशन, प्रोबेबल सॉल्यूशन कंसीडर किया जा सकता है फ्री राइडर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दैट द पब्लिक और द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन। और उसी के लिए फिर सेकंड पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या कर दे कि जो भी कोई फाइनेंशियल कंपनी होगी उसको अपने ऑडिट कराने पड़ेंगे अकाउंट, उसको ये जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे या फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि फ्री राइडर प्रॉब्लम को एक तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। व्हाट डू यू कॉल इट, किसमें भला क्या कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है फ्री राइडर का। ठीक है, अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है हो सकता है तो सजेस्ट करो, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, ये कंपलसरी कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए कि वो जो मतलब जिस प्राइवेट कंपनी है वो खुद अपनी रेटिंग्स मतलब ये जो मूडीज वगैरह इनसे लेकर अपनी कंपनी की साइट पे वो कर दे, अपलोड कर दे, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबके पास ये चला जाए। और मतलब जो पैसा जो जा रहा है मूडीज के पास या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, रेटिंग कंपनीज, सिर्फ मतलब कंपनी पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ सारे इन्वेस्टर्स हैं।
देखो उसका तो मतलब वही हो गया ना, गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्योंकि कंपनी आपके और मेरे कहने से तो Yes, कंपल्शन करेगी नहीं वो, ठीक है ना। वो तो जब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तभी उसको होगा, यस और नो भाई। लॉ Yes, इस तरह yes, का sir, लॉ yes, sir. बनाना है या इस तरह की कोई भी एक तरीके से क्या कहते हैं कि कोई क्लॉज लेकर आना, कोई कंडीशन लेकर आना जो लीगली बाइंडिंग हो, क्योंकि जब तक किसी कंपनी पे कोई चीज लीगली बाइंडिंग नहीं होगी वो उसको करेगी नहीं, वो उसकी विल पर रह गई फिर तो, है ना। तो जहां हम लीगल बाइंडिंग की बात करते हैं वहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो लॉज बनाती हैं वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं, लॉज आप और हम नहीं बनाते, ठीक है। Yes. तो वही गवर्नमेंट रेगुलेशन वाली बात आ गई, जो सेकंड पॉइंट है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू हम कर सकते हैं ओवरकम, ठीक है। Yes, sir. अब कोई और कुछ बताना चाह रहा है? हेलो, क्या कोई और सवाल पूछना चाह रहा है? कोई और क्वेश्चन है, किसी को पूछना है, या किसी ने कोई और सजेशन देना है कि भाई फ्री राइडिंग प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यस, हेलो हेलो, हेलो, नो सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आज जो मैंने आपको कराया इसमें कोई और डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकता है, किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। अदरवाइज आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।